Hello, boys and girls. We are on a chapter called as Analysis of Financial Statement, and till now we have seen two tools for analysis. One is comparative statement, other is common size statement. There I have told you to go for these comparative and common size statements. You have to first understand the specific form of balance sheet and then the statement of profit loss. Then you can have comparative or common size statement. Okay, after learning those forms. Now the tool we are talking about has a different format altogether. Okay, that is cash flow analysis. Right now we are not going to learn the format. Right now we will learn about the cash flow and cash flow analysis. Okay, so here we go. First thing we'll understand is what is cash flow. Okay, we'll understand what is cash flow. So here we go. Let us understand cash flow is simply the flow of cash through the organization over a period of time. ये देखो नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश, but the cash is flowing in this organization. How it is flowing, that is what we will understand. That is what cash flow is. Okay, now it includes inflow and outflow of cash from various activities during a particular period. Okay, period of time. So here we understand there is an inflow in business and obviously there has to be outflow also. हमें पैसा मिल रहा है तो हमें पैसा खर्चना भी पड़ेगा, right? Expenses, incomes, ये दोनों होते रहेगा. So inflows भी है, outflows भी है, दोनों पे हमें फोकस करना है in cash flow. Cash flow means inflow भी और outflow भी. Here we go. Let us understand in more detail now. Cash inflow means cash comes into business. वाह क्या बताया है. In the form of revenue from sales. कैसे आएगा कैश वो बताए. कैश आएगा ये तो हमें पता है, बट कैसे in the form of revenue. ओके ये देखो पैसा ही पैसा, नोटों की बारिश जैसे मैंने बताया. And the other incomes, सेल्स से मिलेगा और अदर इनकम से भी पैसा मिलेगा. Such as what? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स एक्सेट्रा. ऐसे कुछ और इनकम्स भी हो सकते हैं बिजनेस के जिससे हमें इनफ्लोज आ रहा है. कैश आउटफ्लो रेफर्स टू कैश गोज आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट टू लेबर्स एक्सेट्रा. ये सब के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा. सो इट इज आउटफ्लो ऑल्सो. Now, let's look on the following images to understand cash inflow and outflow in better way. ये देखो पहला इमेज कैश इनफ्लो. देखो यहां से ये कैश आ रहा है, ये पानी का सिर्फ एग्जाम्पल है, बट यू हैव टू अज्यूम इट एज कैश आ रहा है. अभी फिलहाल इधर मत देखो रे, यहाँ पे ये साइड में मत देखो. सिर्फ इतना, अगर ये कुछ एक पानी जमा करने का, पैसा जमा करने का एक इंस्ट्रूमेंट है और यहां से पैसा अंदर ही आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ कैश इनफ्लो, देखो बिकॉज ऑफ योर कैश इनफ्लो. देखो फिलहाल इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये बंद ही है यहाँ पे, ठीक है, ये बंद है. तो बिकॉज ऑफ कैश इनफ्लो ये ऐसे गिरते रहेगा तो ये क्या धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, है ना. सो बिकॉज ऑफ कैश इनफ्लो कैश इन हैंड इंक्रीजेस. मेरा कैश इन हैंड बढ़ते रहेगा क्योंकि कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, बढ़ रहा है. बट ऐसा वन साइडेड तो कभी होता नहीं ना बिजनेस में कि कैश इनफ्लोज ही हो रहा है, आउटफ्लो है नहीं, ऐसा तो होगा नहीं. सो जैसे यहाँ पे कैश इनफ्लो हो रहा है ये बढ़ रहा है, लेकिन जैसे आउटफ्लो हो रहा है ये कम भी हो रहा है. सो कैश आउटफ्लो अगर हुआ तो ये वापस कम भी होते रहेगा. सो कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, what effect it gives in your cash in hand? Cash inflow will increase it, cash outflow will decrease your cash in hand. जैसे जैसे पैसा जाएगा पैसा कम होते रहेगा. Correct? So this is what we have to understand. Now, moving further, let us understand another thing. Now let's see what is cash flow analysis. Cash flow analysis refers to the analysis of actual movement of cash into and out of an organization. कैश बिजनेस में कैसा आता है और बिजनेस से बाहर कैसा जाता है, वो एक्चुअल मूवमेंट हमें समझना है कैश फ्लो में. ओके, कैश इनफ्लो इज नोन एज पॉजिटिव कैश फ्लो. पैसा आ रहा है तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए. व्हाई इट इज कॉल्ड सो? पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज कैश कम्स इनटू द बिजनेस. कॉमन सेंस व्हिच इज अनकॉमन नाउअडेज, इसलिए ये सब बताना पड़ता है हमें. देखो
क्या दिन आ गया, ये सब डिटेल में बताना पड़ता है क्लाउड निकाल के कि इसको क्यों ऐसा बोला जाता है। कॉमन सेंस आपका इंटैक्ट है ना, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। सिमिलरली कैश आउटफ्लो इज ऑल्सो नोन एज निगेटिव कैश फ्लो। कैश जा रहा है तो अपने लिए निगेटिव है बाबा। ये क्यों निगेटिव है? कॉमन सेंस जिनका अनकॉमन हो चुका है उनके लिए ये, बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, इसलिए ये निगेटिव फ्लो है अपने लिए। ये हमें बताया जाएगा कैश फ्लो में, ठीक है, कि पॉजिटिव फ्लो कौन सा और नेगेटिव फ्लो कौन सा। द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये हमने देखा। नेट कैश फ्लो इज व्हाट? कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का डिफरेंस। ये देखो, नेट कैश फ्लो इज दिस माइनस दिस कैश आउटफ्लो। पैसा आया, उसमें से पैसा गया, तो हमें बचा नेट कैश फ्लो मिला। चलो आगे बढ़ते हैं वापस। कैश फ्लो एनालिसिस enables to know how much cash has been received and utilized during an accounting year. कितना पैसा मिला, उसमें से कितना यूटिलाइज किया, इसका एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। Thus, it summarizes the causes for the changes in cash position of a business enterprise between dates of two balance sheets. दो बैलेंस शीट के बीच में क्यों बाबा कैश पोजीशन चेंज हो रहा है बार बार, ये समझने का रीजनिंग इसका हमें कैश फ्लो में मिलेगा। नाउ मूविंग फर्दर, वी हैड स्टडीड कैश फ्लो एनालिसिस कैसा। नाउ लेट्स सी हाउ टू एनालाइज कैश फ्लो। अभी तक जो मैंने आपको बात किया वो कैश फ्लो कैसे बनाया जाता है, ये बात किया कि इनफ्लोज भी देखते हैं, आउटफ्लोज भी देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटफ्लोज। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस हुआ तो नेट कैश फ्लो बचेगा, और दो बैलेंस शीट का कंपैरिजन करके हम ये पता कर सकते हैं कि नेट कैश फ्लो का चेंजेस क्यों हुआ दोनों ईयर का अगर कंपेयर करेंगे तो। नाउ लेट अस सी एनालिसिस कैसे करेंगे इसका। Cash inflow and outflow is recorded in a statement known as cash flow statement. To analyze cash flow, we need to analyze the cash flow statement, obviously. What is cash flow statement? क्या होता है cash flow statement? देखते हैं ना। A cash flow statement is a financial report that describes the sources of company's cash and how that cash was spent over a specified period of time. कैश का सोर्सेस क्या है? कैश इनफ्लो जानने के लिए कैश का सोर्सेस पता करना पड़ेगा, कहां कहां से कैश आ रहा है। और कैश का आउटफ्लो जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि ये कैश कैसे यूटिलाइज किया, कहां कहां पे ये कैश हमें लगा, यूटिलाइजेशन कैसे हुआ। दैट इज व्हाट वी विल थिंक अबाउट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के लिए। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन। अभी हम अगर कैश फ्लो का बात कर रहे हैं तो उसमें नॉन कैश आइटम लेना है क्या? ऑब्वियसली नॉट, नहीं लेना है। It is similar to the income statement. Income statement बनाते थे वैसा ही है ये। The difference between the two statement is that the income statement takes into account some non-cash accounting items such as depreciation, but cash flow statement does not take it into account. Okay? Non-cash items लेना ही नहीं, बोल ही रहे cash flow, तो non-cash क्यों लेंगे? ठीक है? Income statement में लेते थे ये, depreciation ये सब दिखा देते हम। यहां पे नहीं दिखाएंगे, यहां पे ओनली एंड ओनली कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रिप्स अवे ऑल ऑफ दिस एंड शोज एग्जैक्टली हाउ मच एक्चुअल मनी द कंपनी हैज जनरेटेड। ये सब पार करके कैश फ्लो हमें क्या बताता है कि एक्चुअल मनी कैसे जनरेट किया है। इनफ्लो इतना, आउटफ्लो इतना, तो मनी जनरेटेड कितना है। कैश, नॉन कैश नहीं लेना है, ओनली कैश। सो दिस इज हाउ we gonna analyze our cash flow statement. देखो इस स्टेटमेंट पढ़ने में भी हमें मजा आने वाला है। जब क्वेश्चन आएगा ना, you'll realize कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमने कुछ अच्छा नया सीखा है। ठीक है, सो क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कैश फ्लो बनता कैसे है ये तो पता कर ले। सो इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल विल अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन, द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कैसे है ये पहले देखेंगे, फिर we can analyze it. Okay, there are different aspects while preparing the cash flow statement. ये सब हमें अगले मॉड्यूल में देखना है. Till then, stay tuned.